class, as you already aware of that key, what are the events? So we have already done JavaScript events, but now we will implement the same with the help of jQuery events. So you know what is events. Whenever some visitor visits on your page and responds to that page, we call it an event. Okay. Anything on that particular page, like a small movements, like anything happened, like he click on a button, he move mouse, okay, click on the some video button, select choices and all that. So all these are considered as events. Okay. And the term, whenever we talk about events, is called fire or fired. Okay. So these things are related to these fire and fires terms are related to events. Whenever an event clicked, we call that the event is fired. Okay. So today in jQuery events, we have a lot of different kind of events. Okay, so I'm going to start with the first event. Okay, that is called mouse events. Okay, so mouse events are generally when we use, when we click on any event, when we double click on an event, when we mouse over, mouse out. So these are called under the category of mouse event. Similarly, the another category that is called keyboard events, when when we press some keys, and it will also fire an event, and these are called keyboard events. Okay. And last is called form events, when we are dealing some input element, the user clicks on input element. Okay, and then he can select any choice, he can press the button. Okay, so all these are known as the form events. So basically there are three category of events. One is mouse event, keyboard event, uh, form event, even though we have windows event. Okay. So generally the first three category are basically used. Okay. Also events, everyone knows, whenever the visitor come on that page and interact with elements, these are considered events. Okay. And with the help of events, we can actually uh, create some interactivity with the web pages. So I'm going to start implementing all those events one by one. Okay. Okay, so just I'm opening this jQuery page in a code editor. I think सभी को समझ आ गया होगा what is actually the events are. So let's remove these HTML pages and create our those new one. Okay, now let's create the first, that is jQuery events.html. Okay, now uh, first of all, let's create the skeleton and write title as jQuery events. Okay, now my first task is to link the jQuery source file. So I'm using the script source attribute and just pass the jQuery. Okay, next, in this page I'm also using Bootstrap. Okay, so I have to link that CSS of Bootstrap also. Okay, so I'm linking CSS file as well. Okay, now in the body section, I'm going to create the container that hold your content. So container, and at the same time I'm also using another class that is empty3, that is margin top 3. Okay, in that container I'm just writing h1 with the text center class, and I just write jQuery events. Okay, now I'm creating the hr. Okay, now let's see the output of this code. Okay, now I'm getting that jQuery events. Okay, now first let's create a box division with the bootstrap classes text center, padding 3, padding 3, and margin top to 3,
having the border and border dark. So this is the benefit of bootstrap कि जब मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई एम अप्लाइंग द CSS. Okay, so I have created a division section. So you will see there is a box created. So at the same time I am creating the paragraph with text justify. Okay, text justify. Okay, now in that I am used lorem 50. So you will see the text will be constructed. Okay, so I think the CSS is implemented. You will see when I click this, you will see the entire paragraph. There is padding apply, border apply. Okay, okay, that's the benefit of the bootstrap. Okay, so I'm putting over here. Now let's create our script jQuery statement. So I'm going to the body section and create our script tag, and now I'm using the jQuery statements. Okay, now the first thing I have to use the document.ready tag that generally we prefer, so that the document should be ready before the statement. So I just pass function, anonymous function, even though we are writing this statement in the body section, still it is not required, but because some student just copy paste and put into the header section, so it will work over there also. Okay, so just I'm just writing for the sake of that security purpose. Okay, now the first mouse event, that is click event. Okay, so I'm clicking. So the main purpose is when I click this box, the jQuery statement will be applied. So when I click this box, okay, so I'm just writing here the jQuery statement like box. Okay, box is the name of the class. Okay, box is the name of the class. So let's check, is there any students having asking some question? Okay, Tushar said box is a bootstrap class. No, what is it? No, box is not a bootstrap class. I'm using the user defined class and now applying some of the bootstrap like text center, padding 3, margin top, border, and border dark. Okay, so border dark is basically the dark outer border. Okay, that is I just apply. Now when I click this box, so I use the event called click event, and in that click event I am passing a anonymous function. Okay, and that function I'm just change the background CSS. Okay, now for changing the background, I just want, when I click this box, the box background itself change the background color. So I just use dollar, okay, box. So okay, no, so now instead of box I can also write this, because this is the current, this refers to the current object. Current object is the box itself. So instead of writing box I can write this one. Okay, so I will write this in the next function call. Okay, so this dot CSS, and I'm changing the background. So let's background color will be, okay, the color I'm going to add light pink. Okay, now let's see either the output will be executed or not. Okay, now when I take my mouse on the box and click on that box, I think it should change the background color. So when I click this box, it will change the background color. Okay, just I am going to refresh it again I'll show you. But if I click outside this box, nothing happened. Okay, when I click only inside the box, the background color will be changed. Okay, so I can apply the click event on any of the HTML element. I can click on button, I can click the paragraph, the box, or we can
click the H1 as well. Okay, like I'm clicking on H1, it's nothing changed, but I can change the color as well. Okay. Okay, now let's do some other event. So I'm just copy this code. Now I'm using double click. Double click is the next mouse event. Instead of box, I'm just passing this. So you can either pass the box class or itself this. Okay, now when I double click on this box, so double click is the another mouse event. So the color should be let's say sky blue. Okay, so this will be the on double click. So let's see. So मैं यहाँ जाता हूँ, बॉक्स पे सिंगल क्लिक करता हूँ. So whenever I click single, when I click one time, so it will just change the background color to pink. But when I double click it, you will see the background color change to sky blue. So click is another event, double click is another event. Okay, both are different event. Both can be used for different purposes. Okay, it's up to you. You want a single click, use a single click event. You can use double click as well. Okay, now another event that can also be used is known as context menu. Context menu. What is context menu? Context menu is like whenever you can use, okay, there are two buttons on the mouse. One is left click and another is right click. Left click is basically we use for selecting anything, but right click is basically to perform some additional functionality like copy, paste, or view page source. Similarly, you can use that context switch on that on this example. So I'm just changing the color so that you can find whether it will perform or not. Okay, now when I click this, it's called a click event. Double click is called another event. Now I'm right click using the mouse. So when I right click, you will see this menu will be appear, that is known as context menu, and at the same time you will see the background color change. Okay, so this is known as context menu event. Okay, context menu event. ओके, तुषार कह रहा है कि मुझे बहुत सारी सीएसएस प्रॉपर्टी लगानी, तो कैसे लगा सकते हैं? ओके, आई थिंक मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको एक से ज्यादा सीएसएस प्रॉपर्टी लगानी है, ओके, या तो आप अलग अलग लाइन में लगा दें, या आप क्या कर सकते हैं, आप कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं. ओके, और इस कोमा की बजाय आप यूज करोगे कॉलन. नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने अप्लाई करी है, एंड अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, कोमा लगाओ. Okay, like you want to change the text color as well. Okay, so यहाँ पर लगाओ आप next property like color, and color should be red. Okay, तो आप देखोगे जब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, आप देखोगे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और फोर कलर भी चेंज हो रहा है. ओके सर, अगर क्लासेस ऐड करनी है, और मैं क्लासेस ऐड करना सिखाऊंगा. वी कैन यूज द इनबिल्ट मेथड्स, दैट इज ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास, जो जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता था. ओके, वहां क्लास लिस्ट यूज करते थे, इसके अंदर हम दूसरे फंक्शन यूज करेंगे, एंड दैट फंक्शंस आर नोन एज ऐड क्लास डायरेक्टली. जस्ट ऐड क्लास. ओके, तो वो ऐड हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे मेथड्स भी पढ़ने वाले हैं. आज हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ we have gone through the three functions, three events: click, double click, and context menu. Let's talk about the next event, that is mouse enter. Okay, so mouse enter means, okay, so mouse enter is like when I use this cursor and move the mouse over the box, because मैं box के ऊपर apply कर रहा हूँ. So let's see, I just want to change the background color to like light gray, and the text color should be white. Okay, like this one. So when I देखो, अभी मेरे माउस का कर्सर बॉक्स से बाहर है,
ठीक है, जब ये माउस का कर्सर मेरे बॉक्स के अंदर जाएगा देन आपका माउस एंटर इवेंट कॉल होगा। ओके देखो, ओके माउस एंटर इवेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूं दोबारा से, माउस का कर्सर बाहर है बॉक्स के बाहर, कुछ भी हो रहा है, क्लिक कर सकता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जब मैं बॉक्स के अंदर लेके जाऊंगा, ओके अभिषेक यार माइक बंद करके रखा करो। ओके सो माउस का कर्सर जब मैं अंदर लेके जाऊंगा देन the mouse enter event will be called and the corresponding javascript code will be applied। okay जैसे मैं अंदर जा रहा हूं तो वो कॉल हो रहा है। similarly you can also use mouse leave, that is another event that can be used with this mouse leave। okay or at that time I'm applying some let's light green। okay and the text color should be say black। okay now मैं अंदर गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, बट जब मैं बाहर आऊंगा बॉक्स से अगेन इट फायर्स अनदर इवेंट। ओके तो देखो बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो चुका है एंड अगेन वापस अंदर जाता हूं, कलर चेंज हो रहे हैं और एट द सेम टाइम आपके दूसरे इवेंट्स भी कॉल हो रहे हैं। लाइक मैं सिंगल क्लिक करता हूं, बैकग्राउंड कलर डबल क्लिक करता हूं तो स्काई ब्लू कलर एंड राइट क्लिक करता हूं तो आपका ऑरेंज कलर है। तो दीज आर कॉल्ड माउस इवेंट। okay these are called mouse events। let's write h2 and I use a class text center and that is first is mouse events, we just cover mouse events। okay now next we are going to cover here is let's add hr and I am copying this the entire field and I'm writing as a keyboard event। okay now that is keyboard event, second आपकी category है keyboard events। okay now in the keyboard events let's create some unordered list। मैं इसको थोड़ा सा इससे bootstrap पे अप्लाई कर रहे हैं हम साथ साथ। I'm going to create unordered list। unordered list की मैं एक क्लास अप्लाई कर रहा हूँ list unstyled। okay list unstyled and I'm also using text center। text center में आ जाएगा, बॉर्डर अप्लाई होगा एंड बॉर्डर जो होगा म्यूटेड होगा, मतलब लाइट ग्रे कलर का होगा। ओके आई थिंक दैट्स ओके सो अभी आपको बॉर्डर दिख नहीं रहा होगा बिकॉज आई हैव नॉट एडेड एनी लिस्ट आइटम। तो मैं लिस्ट आइटम ऐड करता हूं। द फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट फंक्शन इज माउस सॉरी कीबोर्ड की प्रेस। okay first event is key press, second is key up and third is key down। so these are the three keyboard events। okay now अनलिस्टेड है, देखो तीनों अनलिस्टेड है, लिस्ट आइटम के आगे बुलेट्स लगे होते हैं तो मैंने इसको पहले ही हटा दिया और सेंटर में कर दिया। बॉर्डर जो है इसका म्यूटेड है, देखो बॉर्डर इज म्यूटेड। ओके एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो अप्लाई लाइक padding 3। okay padding 3 तो आपको थोड़ा सा स्पेस भी आ गया। okay now let's work on the keyboard events। तो इसका हम लिखते हैं so that is keyboard events। हाँ कीबोर्ड इवेंट्स में मैं पहले की प्रेस के बारे में बताता हूँ। देखो की प्रेस का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी कीज प्रेस करें कीबोर्ड की। ओके नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो ये इवेंट है ये बॉडी सेक्शन पे लगाता हूँ बिकॉज बॉडी मतलब एंटायर स्किन के ऊपर। जब मैं इस पूरे पेज के ऊपर कहीं भी कीबोर्ड का बटन प्रेस करता हूँ द कलर विल बी चेंज। ओके सो आई एम यूजिंग हेयर द सिलेक्टर एज बॉडी। ठीक है और बॉडी के ऊपर मैं की प्रेस इवेंट लगा रहा हूं।
ओके और मैं इसके अंदर फंक्शन कॉल करता हूँ दैट विल चेंज द CSS. ओके तो अगेन सिलेक्टर कहाँ पर अप्लाई करना है, दिस बॉडी के ऊपर ही अप्लाई करना है. क्या अप्लाई करना है, आई एम गोइंग टू चेंज द बैकग्राउंड. okay background color should be okay. I'm not getting any color, so let's create, find out the color. so मैं मटेरियल आयो पे जा रहा हूँ और उस पर कोई कलर फाइंड आउट करते हैं. लेट्स क्रिएट फाइंड आउट दिस कलर. ओके टर्किश. तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ऑटोमेटिकली कोड आ जाता है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ. नाउ लेट्स फाइंड आउट इज इट वर्किंग और नॉट. तो मैं रिफ्रेश करता हूँ. अब मैं कीबोर्ड यहाँ पर, अगर आपको कीबोर्ड प्रेस करना है तो आपको बॉडी के ऊपर कहीं पर क्लिक करना होगा एक बार, और यहाँ पर यू आर जस्ट स्टार्ट टाइपिंग. तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखने की कोशिश करता हूँ. जैसे मैं पी दबाता हूँ अपने पंकज का, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है. तो मैंने अपना पंकज नेम लिखने के लिए अपना नाम जैसे प्रेस किया, so that will be की प्रेस, मेरी कीज प्रेस हुई है. ठीक है, कीबोर्ड का अगर कोई भी की प्रेस होगा तो द इवेंट विल बी फायर एंड इट विल चेंज द बैकग्राउंड कलर. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इवेंट दैट इज की अप. की अप इज सिमिलर लाइक अगर मैंने की को प्रेस किया है तो की जब प्रेस होने के बाद वापस भी तो आएगी की. जब मैं उसको प्रेस कर रहा हूं सो इट विल बी प्रेस्ड, और जब मैं उसको रिलीज करूंगा इट विल बी कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन. तो उस केस में मैं कलर चेंज करूंगा एंड आई जस्ट वांट टू बी ऑफ दिस कलर. तो मैं इसको कॉपी करता कलर को और इसमें चेंज कर देता हूँ. ओके एंड नाउ आई जस्ट, मैं वापस चलता हूँ कोड पे. ठीक है, तो आप देखो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, मैंने अपना नाम लिखा पी. ठीक है, मैंने पी अभी प्रेस किया हुआ है, और जब मैं पी को रिलीज करूंगा की को, तो आप देखोगे बैकग्राउंड कलर फिर से चेंज हो जाएगा. ओके मैं प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड की प्रेस है, और की को जब मैं रिलीज करता हूँ दैट इज एन अप इवेंट एंड योर बैकग्राउंड कलर अगेन चेंज. ओके नाउ द थर्ड इवेंट दैट इज ऑफ कीबोर्ड is key down. Key down. So I'll just try to first explain the difference between these things. जब मैं की प्रेस करता हूं तो हर एक टेक्सचुअल कीज कंसीडर होंगी. टेक्सचुअल कीज का मतलब है ऐसी कीज जिसकी हेल्प से मैं कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूं, लाइक अल्फाबेट कीज, स्पेस कीज. ठीक है, these keys are considered, numbers keys are considered as the textual keys. और जो की अप इवेंट है, मतलब अप मतलब जब की छोड़ूंगा तो वो तो सभी कीज के ऊपर अप्लाई होंगी, so it will be apply on all keys. और की डाउन जो होंगी वो सिर्फ फंक्शनल कीज पे अप्लाई होगा. ध्यान रखना, की डाउन मतलब मैंने की डाउन तो की है, तो की डाउन इज सिमिलर टू की प्रेस, बट द डिफरेंस इज दैट की प्रेस के केस में आपके टेक्सचुअल कीज को कंसीडर किया जाएगा, और की डाउन के केस में आपकी फंक्शनल कीज कंसीडर की जाएंगी. फंक्शनल कीज कौन सी होती हैं, कोई बताएगा मुझे क्लास? फंक्शनल कीज कौन सी होती हैं? लाइक कंट्रोल की, शिफ्ट की, ऑल्ट की. ठीक है, F1 F2 F1 F2, एरो कीज. ठीक है, डिलीट की, इंसर्ट की, दीज आर कॉल्ड फंक्शनल कीज. तो अब मैं, अब देखो ध्यान से देखो, मैंने उसका इवेंट लगा दिया है. ठीक है, की डाउन. अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मैं कंट्रोल की दबाता हूँ, तो आप देखोगे कलर चेंज होगा, पर मैंने कलर सिलेक्ट नहीं किया. लेट्स चेंज द कलर टू लाइक लेट्स सी ग्रीन. इसको देखते हैं. ओके तो मैं इस कलर कोड को कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ. नाउ लेट्स सी. अब मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं कंट्रोल की दबाता हूँ, तो आप देखोगे कुछ अलग सा कलर आ रहा है. ठीक है, अब मैं इसको रिलीज करूंगा तो अगेन इट विल कॉल द की अप फंक्शन. ठीक है, कंट्रोल की बैक टू द कंट्रोल अप की अप फंक्शन, और मैं जब लिखना शुरू करता हूँ अगेन इट विल चेंज अकॉर्डिंगली. ओके सो दीज आर कॉल्ड कीबोर्ड इवेंट्स. वेरी गुड सिमरन. ओके सो नाउ द माउस कीज और माउस इवेंट्स आर आल्सो वर्किंग. लाइक मैं यहाँ जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, बाहर आता हूँ, अंदर जाता हूँ. सो दीज आर माउस इवेंट एंड दीज आर कीबोर्ड इवेंट्स.
तो क्लास किसी को भी डाउट है इसके अंदर? हाँ जी बच्चा, प्लीज टेल मी। आगे चले क्लास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म इवेंट, फॉर्म इवेंट्स। तो फॉर्म इवेंट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर फाइल एंड नेम्ड एज फॉर्म इवेंट्स डॉट html। ओके, मैं पेस्ट कर देता हूँ, स्क्रिप्ट वाला कोड हटा देता हूँ बिकॉज हम नाउ अप्लाइंग द फॉर्म स्क्रिप्ट फॉर्म इवेंट्स। ओके, ये कलर भी ये बाकी चीजें भी हटा देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट का नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ jQuery आई जस्ट राइट jQuery फॉर्म इवेंट्स। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, नाउ फॉर्म इवेंट्स मैंने आपको बताया फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट फर्स्ट फॉर्म एंड देन अप्लाई डिफरेंट फॉर्म इवेंट्स। तो मैं यहाँ फॉर्म इवेंट फॉर्म को क्रिएट कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं इसके अंदर एक आईडी सेट कर लेता हूँ माई फॉर्म के नाम से। ओके, नाउ आई डोंट रिक्वायर्ड एक्शन फील्ड, मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज हम कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहे। ओके, कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं कर रहे। ओके, नाउ फर्स्ट, ओके, मैं इसके अंदर जो इनपुट फील्ड ले रहा हूं वो भी मैं बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग लूंगा सो दैट हमारा बूटस्ट्रैप भी साथ के साथ चलता रहेगा। तो बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आपको अलाइनमेंट करनी है लेबल्स एंड इनपुट्स की, तो हम एक क्लास यूज करते हैं। कोई बताएगा कौन सी क्लास है वो? द नेम इज फॉर्म, बोलो बोलो बोलो, कम ऑन, दैट इज फॉर्म ग्रुप। ओके, फॉर्म group means I am grouping all my input elements. Okay, now the first I am writing the label, for के अंदर लिखता हूं मैं यूजर नेम। ओके, और इसका जो वैल्यू लिखूंगा वो भी यूजर नेम। नाउ मैं एक इनपुट फील्ड बना रहा हूं, so I just write input और text will be type usual text, id will be user name and देखो अब मुझे इसको कैसा चाहिए, थोड़ा सा अच्छा चाहिए, तो मैं इसके ऊपर एक क्लास लगाऊंगा एंड द क्लास विल बी, बोलो, फॉर्म कंट्रोल। ओके, नाउ यू विल सी, देखो इमीडिएटली इसके ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गया। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट जस्ट वी हैव क्रिएटेड। तो मैं एक और एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूं और उसके अंदर जो मैं रखूंगा लेबल हमारा होगा पासवर्ड। ओके, type equals to password, id equals to password, username is also password. Okay, and form control is the same. Okay, तो आप देखोगे यहाँ पासवर्ड फील्ड आ रही है और ओके, टाइप का रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं टाइप हटा रहा हूँ। आईडी की जगह मैं कर देता हूँ लेट्स ऐड एज। क्लास हमारा फॉर्म कंट्रोल रहेगा। तो आप देखोगे नीचे एक हमारा सिलेक्ट बॉक्स बन गया, बट अभी हमने इसकी ऑप्शन नहीं दी, तो मैं यहाँ जाता हूँ, ऑप्शन इसकी ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आई जस्ट ऐड एज लेस देन 18। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको वैल्यू के अंदर भी डाल दूंगा। ओके, तो मैं इसकी 3 कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट इज लेस देन एज 40 एंड नेक्स्ट इज एज लेस देन 60। ओके, तो मैं यहाँ पर भी 60 कर देता हूँ एंड यहाँ पर 40 कर देता हूँ। ओके, नाउ आप देख सकते हो एक सिलेक्ट लिस्ट बन गई है।
बट एक प्रॉब्लम क्या होता है सिलेक्ट लिस्ट के अंदर, जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हमेशा दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक हमारा सॉल्यूशन ये होता है कि हम जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको बना देते हैं सिलेक्ट एज। ओके, देखो सिलेक्ट एज आ गया, और फर्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू होती है वो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं ताकि वो यूटिलाइज ना हो। ओके, सिलेक्ट एज। नाउ एज आ गया, मैं यहाँ एक बटन बना देता हूँ। तो मैं यहाँ फॉर्म के अंदर ही चलते हैं, फॉर्म के अंदर बनाना है, याद रखना इनपुट एंड टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू लूंगा सबमिट बटन, देखो सबमिट बटन आ जाएगा यहाँ पर। ओके, नाउ मैं इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास लगा रहा हूँ, क्लास बटन, बटन प्राइमरी। ओके, और थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन टॉप दे देते हैं। ओके, नाउ इट्स परफेक्टली अलाइंड, जो हमें चाहिए था फॉर्म वो हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। ओके, सो लेट्स अप्लाई आवर फॉर्म इवेंट्स वन बाय वन। तो मैं आपको पहले एक बार फॉर्म इवेंट्स दिखा देता हूँ कौन कौन से हमारे पास। वी हैव फोकस इवेंट, we have blur event, we have change event, we have select, and finally we have a submit event. So I will start with focus event. So focus event is like, आप अगर आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो देखो, क्योंकि बूटस्ट्रैप अप्लाई है तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली फोकस आ रहा है। देखो फोकस इज जस्ट अ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड बॉर्डर दिख रहा है आपको, बॉर्डर। तो मैं इस पे अगले अगले एलिमेंट पे फोकस करता हूँ, देखो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो फोकस तो ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है, बट मैं कुछ कस्टमाइज फोकस लगाता हूँ, कस्टमाइज क्लास लगाता हूँ ताकि इसके ऊपर कुछ सीएसएस डिफरेंट लगे। तो मैं यहाँ लगाऊंगा डॉलर, पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं पहले यूजर नेम को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो क्लास लगाऊंगा, सॉरी हमारे पास आईडी बनी हुई है यूजर नेम की। ओके, तो यूजर नेम को मैं जब फोकस करता हूँ तो आपका इवेंट कॉल होगा, और उसके अंदर मैं फंक्शन कॉल करूंगा जो इसकी सीएसएस को चेंज कर देगा। ओके, सो अगेन मैं यहाँ फिर से सिलेक्टर लगा रहा हूँ, मुझे इस इनपुट को ही सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ दिस पास करूंगा, और मैं इसके ऊपर सीएसएस लगा रहा हूँ, तो मैं सीएसएस मेथड को कॉल करूंगा, और सीएसएस के अंदर मैं जस्ट चेंज द बैकग्राउंड कलर। ओके, एंड द बैकग्राउंड कलर विल बी LIGHT लाइट पिंक। ओके, नाउ यू विल सी, जब मैं इस यूजर के ऊपर यूजर नेम के क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना क्या होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इससे ये लगेगा कि हाँ ये चीज फोकस हो रखी है। ओके, नाउ आई कैन राइट एनीथिंग। ओके, बट आप देख रहे हो पासवर्ड और सिलेक्ट के ऊपर फोकस नहीं लगा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, जहां मैंने यूजर नेम पास किया है इसके साथ ही मैं पासवर्ड भी पास कर देता हूं, और जो मेरा थर्ड ये था इसका आईडी मैंने एज रखा हुआ था, वो मैंने तीनों पास कर दिए। अब आप देखोगे तीनों के ऊपर हमारा फोकस लग चुका होगा, इस पे लग रहा है, पासवर्ड के ऊपर भी लग रहा है, और हमारे सिलेक्ट के ऊपर भी लग रहा है। देखो, बट एक प्रॉब्लम क्या है, जब मैं फोकस लगा रहा हूं और जब फोकस से हटता हूं तो आपका ये वाला बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। तो मैं फोकस पे आया तो बैकग्राउंड कलर आ जाओगे, देखो आ जाएगा, देखो फोकस किया बैकग्राउंड कलर आ गया। बट जब मैं किसी और एलिमेंट पे जाता हूं तो वो फोकस हट जाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड ब्लर, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्लर। तो मैं यहाँ पर ब्लर इवेंट लगा रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इवेंट इज कॉल्ड ब्लर इवेंट। तो मैं नीचे गया, तो फोकस हटाना है, उसकी जगह मैं लगाऊंगा ब्लर, BLUR। तो हमने एक क्लॉक वाले के अंदर भी हमने ब्लर इवेंट को यूज किया था। ओके, नाउ जब ब्लर होगा तो लाइट कलर हट जाएगा, ठीक है, लाइट कलर हट जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, मैं यूजर नेम पे गया, फोकस आ गया, अब मैं पासवर्ड पे जाऊंगा तो पासवर्ड पे फोकस आ जाएगा, पर यूजर नेम से ब्लर हट जाएगा, मतलब आपका फोकस हट जाएगा। सिमिलरली मैं सिलेक्ट एज पे गया, पासवर्ड का फोकस हट गया, ब्लर इवेंट कॉल हो गया, ठीक है। ओके, तो यूजर नेम पे चलते हैं, तो हमारे सबके ऊपर फोकस और ब्लर इवेंट सब पे कॉल कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इवेंट दैट इज कॉल्ड चेंज। चेंज इवेंट का पर्पस क्या होता है कि जब भी किसी भी इनपुट एलिमेंट की वैल्यू चेंज होती है
वैल्यू चेंज किस कब होगी, जब उसके अंदर ऑलरेडी कुछ आइटम्स सिलेक्टेड होंगी। सो चेंज इवेंट जनरली किसके साथ लगता है, जब आप चॉइस के साथ लगता है, जब आपके पास चॉइस हो, या जब आपके पास रेडियो बटन हो, ऑप्शन बटन हो, या आपके पास चेक बॉक्स लिस्ट हो, तो उस केस में हम जनरली चेंज इवेंट को कॉल करते हैं। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी एक सिलेक्ट वाला है, तो जब मैं एलिमेंट चेंज करूंगा तो आपका चेंज इवेंट कॉल होगा। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डिव बनाऊंगा नीचे, जो क्या करेगा, जो भी एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा नीचे। सपोज मैंने 18 को सिलेक्ट किया है, तो यहां दिखाएगा एज लेस देन 18। अगर मैं एज को 40 दिखाऊंगा तो यहाँ 40 दिखाएगा। तो जैसे मैं एलिमेंट्स को चेंज करूंगा, चेंज इवेंट कॉल होगा और वैल्यू को नीचे डिस्प्ले कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर्म के नीचे एक डिव बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कंटेंट। ओके, उसके ऊपर मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ, और बॉर्डर कौन से कलर का लगाना है, प्राइमरी कलर का लगाना है, मतलब ब्लू। ओके, मार्जिन टॉप से दे देता हूँ 3 और पैडिंग देता हूँ 3। ओके, तो जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक बॉक्स आ गया, ये ब्लैंक है, दिस इज ब्लैंक डिव। ओके, तो इसके अंदर आपकी वैल्यू कब आएगी, जब मैं कोई भी सिलेक्ट आइटम को चेंज करूंगा। ओके, सो लेट्स कॉल दिस मेथड। सो मैं क्या करता हूँ, पिछले वाले कोड को कॉपी करता हूँ, मुझे किस पे लगाना है, सिर्फ सिलेक्ट वाले पे लगाना। तो मैंने एज को सिलेक्ट किया, इवेंट इज कॉल्ड चेंज। ओके, सो चेंज करने पे क्या होगा, इसमें भी जो भी वैल्यू मैं सिलेक्ट करूंगा वो डिव के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। तो मैं करूंगा, ये जो मैंने दिस किया हुआ है, मतलब जब कोई एलिमेंट सिलेक्ट हो, कोई वैल्यू सिलेक्ट हो, तो उसकी वैल्यू कॉपी हो जानी चाहिए। तो मैं इसकी वैल्यू को निकाल लेता हूं और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, जब मैं कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा तो वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, उसमें से वैल्यू निकालेगा और उसको किसको दे देगा, ए को दे देगा। ठीक है, किसको दे देगा, ए को दे देगा, और मैं ए को इस div के अंदर स्टोर करा दूंगा। ध्यान से देखो कैसे स्टोर कराना है। तो इस div का पहले मुझे सिलेक्टर निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ सिलेक्टर निकाल लेता हूँ। सिलेक्टर क्या था, डॉट कंटेंट क्लास थी ना, तो मैंने इसको सिलेक्टर निकाला और उसके अंदर सिंपली HTML को पेस्ट कर दिया। HTML के अंदर मैंने ए पास कर दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्या होगा, जब मैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा, आप देखोगे नीचे वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 40 करूंगा तो 40 आ जाएगा, 60 करूंगा 60 आ जाएगा। और अगर मैं सिलेक्ट एज को उठाऊंगा, देखो ध्यान से देखो, तो सिलेक्ट एज के केस में कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सिलेक्ट एज की वैल्यू पहले ही ब्लैंक कर दी थी। ये देखो यहाँ पर क्या है, ब्लैंक, तो उस केस में उसकी वैल्यू नहीं उठा रहा, बाकियों के केस में वैल्यूज पिक कर रहा है। ठीक है, तो इफ आई एम सिलेक्टिंग 40 तो डिस्प्ले हो रहा है 60, डिस्प्ले हो रहा है। बट एक छोटा सा और चीज करते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। ये देखो, ये दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा, बट हट जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा इसके ऊपर एक और एनिमेशन लगाऊंगा जो मैं आपको अगले वाले लेक्चर्स में दिखाऊंगा। तो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ शो, और उसके साथ मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ फेड आउट, जो 3000 सेकंड्स के बाद 3 सेकंड के बाद फेड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, गायब हो गया। एज सेलेक्ट करता हूँ 40 आया। ओके, लेट्स ऐड सम मैसेज हियर, योर एज। ओके, नाउ सी, मैं अगर एज सेलेक्ट करता हूँ एक मैसेज आएगा, योर एज इज लेस देन 18। 40 सेलेक्ट करता हूँ, योर एज इज लेस देन 40 एंड योर मैसेज विल बी आउट। तो मैंने एक छोटा सा एनिमेशन दिखाया है, जिसे मैं आपको अगली वाली क्लासेस में आके बताऊंगा कि एनिमेशन कैसे हम jQuery की हेल्प से डाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इवेंट इज कॉल्ड सिलेक्ट इवेंट। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और आप लोग बहुत बार यूज करते हो। हाँ, स्क्रोलिंग पे हम हमारे पास एक विंडो का हमारे पास इवेंट्स होते हैं, विंडोज के स्क्रॉल इवेंट्स होते हैं।
तुषार मैं आपको उसका आइडिया दे दूंगा, बिकॉज क्योंकि ये विंडो के इवेंट्स क्या हो गए हैं धीरे धीरे आपके जे क्वेरी से हट गए हैं। तो पहले लोड इवेंट होता था, अनलोड इवेंट होता था, तो वो हट गए हैं, तो इसलिए बाकी भी इवेंट्स जो है स्क्रॉल इवेंट भी हट जाएगा बहुत जल्दी, बिकॉज वो इतना इफेक्टिवली यूज नहीं होता। ओके चलो मैं फिर भी मैं कुछ इवेंट्स के बारे में आपको बता दूंगा। ओके नाउ बड़ा अच्छा इवेंट है एक, आपने देखा होगा जब हम बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, देखो मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप सीडीएन, बूटस्ट्रैप सीडीएन, ठीक है, मैं पहले वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि जब मैं किसी भी जो लिखा रहा ना क्लिक टू कॉपी, क्लिक टू कॉपी, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक कंटेंट ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं इसको नोटपैड में जाके पेस्ट करता हूँ तो आप देखोगे पेस्ट हो जाएगा। मैंने तो कहीं मैंने कहां से कंट्रोल सी नहीं दबाया, मैंने सिर्फ क्लिक किया है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सिलेक्ट इवेंट। ठीक है, मैं आपको ये सिलेक्ट इवेंट, तो मैं बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे डेटा कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके क्लिपबोर्ड के अंदर। ओके तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ यहाँ पर नीचे। ओके एंड टाइप इक्वल्स टू बटन, नो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, मैं सीधा क्लास लगा लेता हूँ btn secondary okay and copy to clipboard. Okay, let's see what will be the output. Okay, copy to clipboard आ रहा है, तो बटन सेकेंडरी काम क्यों नहीं कर रहा, ओके सेकेंडरी में स्पेलिंग मिस्टेक थी। ओके तो इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, मार्जिन टॉप 3। ओके सो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यूजर नेम जो होगा वो कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होके कहाँ कॉपी हो जाएगा, ठीक है, जो भी यूजर नेम होगा वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इसके ऊपर एक इवेंट लगाता हूँ, तो मैं एक इसकी क्लास दे देता हूँ कॉपी। ठीक है, मैं इसको कॉपी करने के लिए क्लास यूज करूंगा, तो मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, यहाँ तो बटन का नाम क्या है, कॉपी। तो बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करूंगा बटन पे, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये डेटा जो इसके अंदर यूजर नेम के अंदर जो भी डेटा होगा वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं, क्लिक, इसको हटा देता हूँ इस कोड को। ना ओके सो कोड क्या रहेगा कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं यूजर नेम का डेटा कॉपी हो जाए, तो जस्ट राइट फर्स्ट सिलेक्टर, सिलेक्टर का नाम क्या है, यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका इवेंट होगा दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट इवेंट, सिलेक्ट इवेंट कॉल होगा। जब सिलेक्ट इवेंट कॉल होगा उस टाइम क्या होगा, आपका एक इनबिल्ट मेथड होता है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट एग्जीक्यूट कमांड, एंड दैट कमांड इज कॉपी। आपको डॉक्यूमेंट की कमांड कॉपी करनी है, दैट इज कॉपी। सो क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा जो भी डेटा इसके अंदर होगा यूजर नेम के अंदर, वो कहां चला जाएगा, हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाएगा। क्लिपबोर्ड मींस जो आपके सिस्टम का क्लिपबोर्ड होता है। सो लेट्स मैं उसको अलर्ट करा लेता हूं, अलर्ट करा के मैं उसको डिस्प्ले करा देता हूं कि क्या यूजर नेम था। सो जस्ट राइट, सो आई एम जस्ट यहां लिखूंगा डेटा कॉपीड, और वो मैं डेटा को भी यहाँ डिस्प्ले कराता हूँ। डेटा क्या होगा, ये जो यूजर नेम है इसकी वैल्यू। ओके नाउ मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ कुछ नाम लिखता हूँ, पंकज फ्रॉम चंडीगढ़। ओके तो जब मैं इस पे कॉपी डॉट क्लिपबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो देखो ध्यान से देखना क्या होगा, मैं कहीं कॉपी कंट्रोल सी नहीं दबा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा आ गया, डेटा कॉपीड
एंड डेटा क्या था, पंकज फ्रॉम चंडीगढ़। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, सपोज मैं इसको हटा देता हूँ एंड आई जस्ट राइट बीटा लैब्स, ओके, तो मैं यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड इस पे क्लिक करता हूँ, तो क्या आ गया, डेटा कॉपीड बीटा लैब्स। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसको कंटेंट में भी पेस्ट करा सकते हो, तो मैं इसको कंटेंट में भी पेस्ट करा सकता हूँ। नीचे जो ये डिव है इसके अंदर भी हम पेस्ट करा के देख लेते हैं। सो जस्ट यूज क्लास का नाम डॉट कंटेंट एंड इसकी जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला टेक्स्ट होगा। ओके, तो मैं ऊपर वाले को कमेंट आउट करता हूँ। अब हमारा अलर्ट नहीं आएगा, देखो जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ, सो टुडे इज द लास्ट डेट फॉर प्रोजेक्ट सबमिशन। आई थिंक आप सभी को याद हो गया होगा। ओके, तो देखो जैसे मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करूंगा, ये डेटा उठ के कहाँ चला जाएगा, डिव में चला जाएगा। देखो चला गया, कहाँ चला गया, अरे क्लिपबोर्ड में पड़ा है ना, अरे वो तो मैं दोबारा क्लिपबोर्ड दबा दिया। चलो, सो लेट्स ऐड पंकज। अच्छा वो गायब इसलिए हो रहा है कि मैंने यहाँ पर फेड इवेंट लगाया हुआ है, इसको हटा देते हैं। ओके, आ रहा है बट एकदम गायब हो जाता है। सो आई जस्ट राइट सम स्टेटमेंट हियर, डॉट शो फॉर 5000 सेकेंड। लेट्स सी चलता है कि नहीं चलता। ओके, आई जस्ट चेक कि गायब क्यों हो रहा है। वो आ रहा है बट इमीडिएटली चला जा रहा है। ओके, तो मैं इसको देखते हैं। ओके चलो, लास्ट इवेंट रह गया हमारा, ठीक है, हमारा एक लास्ट इवेंट रह गया, दैट इज सबमिटेड, सबमिट। ओके, तो हम उस पर चलते हैं। सो द लास्ट इवेंट इज सबमिट। सो सबमिट किस पे लगेगा, इस बटन पे लगेगा, बिकॉज जब भी आप डेटा को गेट कर लेते हो उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेटा को सर्वर पे सेव कराना। सो एट दैट टाइम व्हेन यू क्लिक दिस सबमिट बटन, so at that time the submit event will be called। okay, so मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिलेक्टर लेता हूँ। सिलेक्टर क्या होगा आपका, माई फॉर्म। जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो आपका सबमिट इवेंट कॉल होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आप कुछ एनोनिमस फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। तो आप यहाँ सपोज मैं अलर्ट करवा देता हूँ एंड डेटा सबमिट सक्सेसफुली। ओके, सक्सेसफुली। ओके, नाउ लुक एट दिस। अगर मैं यहाँ यूजर नेम डालता हूँ पंकैप एंड पासवर्ड विल बी पंकज, सिलेक्ट करता हूँ एज बिटवीन 40 एंड आई एम गोइंग टू क्लिक द सबमिट बटन। तो यहाँ लिखा आ रहा है डेटा सबमिट सक्सेसफुली। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ इवेंट। जब मैं ओके करता हूँ, ओके, so data will be sent over to the server. So submit is basically an event in order to perform some submission task। ओके, तो आप अगर आपको लगता है कि आपने बटन बनाया है और बटन के ऊपर आपने टाइप उसका सबमिट नहीं लिया, तो आप एक्सटर्नली सबमिट फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो सबमिट फंक्शन इज बिहेव लाइक अ सिमिलर फंक्शन, लाइक अ नॉर्मल इनपुट सबमिट फंक्शन। ओके, आप इसके ऊपर इवेंट भी लगा सकते हो आप इसके ऊपर।